વાતો થતી હોય ત્યાંથી દૂર રહેવું અને એક ધૂણવા વાળાથી દૂર રહેવું. કોઈ ભૂવા હોય તો દુઃખ ન લગાવે. કળનો ભૂવો, થાપાનો ભૂવો, પઢિયાર ભૂવો, રાખડી બંધ ભૂવો, થાપાનો ભૂવો. એટલે એક ભૂવાને બાર ગામ જવું ને તેને કહેતા તું ધૂણિયા છે માર બદલામાં. લે પેલા ભુવન બાર ગામ જવું તો બીજા ભુવન ભલામણ કરતો હતો મારા બદલામાં તું ગોઠણિયા ભાંગી આવજે. કેવા ભુવા! તમારે ત્યાં લગભગ જામનગરમાં બહુ ભુવા નહીં હોય, અમારે ભાવનગરમાં બહુ ભુવા. ભાવનગરમાં રાત્રે તમે અગાસી ઉપર નીકળો ને તો લગભગ ક્યાંક ના ક્યાંક તો ડાકલા વાગતા જ હોય, ધૂણતા જ હોય. એટલે ભાવનગર વાળા કોઈ દુઃખ ન લગાડે, કારણ કે ભાવનગરમાં મેં ઓછામાં ઓછી લગભગ વિનુ કાકા 25 કથાઓ મેં કરી ભાવનગરમાં. મારે વિનાયક ભારતી આવ્યા છે, મંગલ ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ ચલાવે છે અને બહુ સેવાકીય પ્રવૃત્તિ કરે છે. અને અહીંયા તમારા જામનગરમાં પણ મને ડાયા અને સારા સારા માણસોને મળીને બહુ આનંદ થાય છે. એક નટુ બાપા ત્રિવેદી આજ મને મળ્યા ને એની વાત મને બહુ ગમી. જેલની અંદર પુરાયેલા, કેદની અંદર પુરાયેલા માણસોના આંખના મોતિયા ઉતારે, એની આંખની તપાસ કરે. જે કેદીઓ છે, બહેનો કે જેલમાં રહેલી હોય ને બહેનોના બાળકો હોય એને બહાર ફરવા લઈ જાય. આવા મહાપુરુષો આવા સમાજ માટે, જગત માટે સારા સારા કાર્યો કરે, અમને બહુ ગમે. આવા જયારે સેવાભાવી માણસોના દર્શન થાય ને ત્યારે આમ ગજગજ ફૂલે, બહુ આનંદ બહુ થાય. કેવા ડાયા ડાયા માણસો છે, કેવા સજ્જન માણસો, સમાજની કેવી સુંદર સુંદર સેવાઓ કરે છે. કોઈ જાહેર નહીં, કોઈ બોર્ડ નહીં, કોઈ તેની જાહેરાતો નહીં, છતાં પણ કેટલી કેટલી સેવાઓ કરે છે. બહુ આનંદ થાય. પણ જે સમાજની સેવા કરે છે અને જે સમાજના ઉપયોગમાં આવે છે, પેલું સૂત્ર નથી, સાચો યોગી તો તે છે કે જે બીજાને ઉપયોગી છે. સાચો યોગી તો તે છે જે બીજાને ઉપયોગી છે. યોગી ન બનો તો કોઈ જરૂર નથી, પણ કોઈને ઉપયોગી બનો તો આપ સબસે બડા યોગી હૈ. અને સમાજની અંદર જે સેવાઓ કરે છે, નાની મોટી એવા સેવાભાવી મહાપુરુષોને મારી વ્યાસપીઠ 1 કરોડ વાર પ્રણામ કરે છે. બહુ ગમે, આપણને બહુ રાજી થાય કે સમાજમાં કેટલું સારું થઈ રહ્યું છે. तो सिद्धि नो अर्थ था लक्ष्य तक पहुंचना. सिद्धि का ऐसा कोई अर्थ नहीं है कि फूक मार के चकली बना देना. ये कोई सिद्धि नहीं है. सिद्धि का अर्थ है लक्ष्य तक पहुंचना, बस यही सिद्धि है. तो कोई भी मानव को सिद्धि प्राप्त करनी है तो ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करे. ऐसा उपमन्यु जी ने भगवान श्री कृष्ण देव को कहा और भगवान व्यास ने शिव महापण में कहा. नाना सिद्धि युतम दिव्यं लोकचितानुरजतं सुनिचार्थं गंभीरं वाक्यं तत् परमेश्वरं. परमेश्वर का कोई गंभीर वाक्य है तो ये पंचाक्षर मंत्र है, निश्चित अर्थ वाला. ओम नमः शिवाय का अर्थ क्या है? ओम એટલે બ્રહ્મ, નમઃ એટલે નમસ્કાર, શિવાય શિવ અને શિવાય બંને આપ આખા વિશ્વનું કલ્યાણ કરો, આવો અર્થ થાય ને ઓમ નમઃ શિવાય મંત્રનો. ઓમ નમઃ શિવાય મંત્રનો અર્થ કેટલો મહાન છે. આખા વિશ્વનું કલ્યાણ કરો, બ્રહ્માંડનું કલ્યાણ કરો, જીવ માત્રનું કલ્યાણ થાય, આવો અર્થ ઓમ નમઃ શિવાય. શિવ શબ્દનો અર્થ જ કલ્યાણ થાય છે. निश्चिंत अर्थ वाला वाक्यम परमेश्वरम, परमात्मा का गंभीर वाक्य. सुनित्यार्थम गंभीरम वाक्यम तत् परमेश्वरम. परमेश्वर का कोई गंभीर वाक्य है तो ओम नमः शिवाय मंत्र. जगत में ओम नमः शिवाय जैसा कोई सरल मंत्र भी नहीं. इतना सरल है, बहुत सरल है. ओम नमः शिवाय बोलने में मुख को कोई कष्ट होता है? मुख को कोई कष्ट नहीं होता. ऐसे प्रेम से बोल सकते हैं ओम नमः शिवाय. कोई ताकत करने की, कोई बल करने की कोई जरूरत नहीं रहती.
जीवा को टेढ़ी मेढ़ी करने की कोई जरूरत भी नहीं रहती, ऐसे ही बोल सकते हैं प्रेम से ओम नमः शिवाय। सुख पूर्वक मुख में से निकलने वाला कोई मंत्र है तो ये है ओम नमः शिवाय, सुख पूर्वक। इसलिए भगवान व्यास ने कहा मंत्रम सुखम मोक्षोच्चार्य शेषार्थ प्रसीदये प्राहो नमः शिवायेति सर्वज्ञः सर्वदेहिना। सर्वज्ञ सर्वदेहिना, जितने देहधारी इस धरा पर है सभी देहधारियों के लिए ओम नमः शिवाय मंत्र ये सुख देने वाला है, समृद्धि संपत्ति और आनंद प्रदान करने वाला कोई मंत्र है तो ये है ओम नमः शिवाय। मंत्रम सुखम मुखोच्चार। भगवान व्यास ने ये सब लिखने की क्या जरूरत थी है? लेकिन छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखकर भगवान व्यास ने शिवपुराण में बहुत सुंदर समझाया। भगवान व्यास कहे मंत्रम सुख मुखोच्चार, मुख में से जब ओम नमः शिवाय मंत्र निकलता है ना, इस समय मानव को सुख की प्राप्ति होती है और मुख को कोई कष्ट नहीं होता। बाकी तो इतने कठिन मंत्र है हम सभी बोल नहीं सकते। ये तो विद्वान ब्राह्मण जो पाठशाला में जिसने अभ्यास किया है, पाठशाला में बैठ कर कितने मंत्र कंठस्थ किए और सुन सुनकर उसका शुद्ध उच्चारण किया। ये ब्राह्मण जो विद्वान बोलते हैं, यज्ञ होता है यही समय भगवान का पाठ करते यही समय मुद्राओं के साथ जो बोलते हैं, ये बहुत कठिन है। जो ब्राह्मण विधि और पूजा और यज्ञ कराते हैं ना, यही समय ब्राह्मण लोग बोलते हैं, तो ये बहुत कठिन है, सरल नहीं है। कोई भी ब्राह्मण आपके घर कर्मकांड और पूजा कराने के लिए आए तो उसको कभी सामान्य नहीं समझे। उसने बहुत परिश्रम किया है, बहुत मेहनत की है, बाद में उसके सब मंत्र उसको कंठस्थ होता है। जो पाठशाला में पढ़कर रहकर कितनी विद्या प्राप्त की है, इसलिए ब्राह्मणों को अधिक से अधिक तृप्त करो। कहीं लोग ब्राह्मणों की विद्या का सम्मान नहीं करते, ये ठीक नहीं लगता, ये बहुत कठिन है। आपके घर में आकर कितने सुंदर मंत्रों का गान करते मुद्राओं के साथ, वातावरण कितना पवित्र होता है। और कोई भी ब्राह्मणों के पास छोटा सा भी आप कर्म कराओ, यही समय उसको दक्षिणा दे दो। एक रात्रि जो आपने कोई ब्राह्मण को दक्षिणा नहीं दी कोई कर्म की, तो सहस्त्र गुना दूसरे दिन देना पड़ता है। कोई भी छोटा सा एक मुहूर्त आप दिखाने के लिए जाओ तो यही समय उसको कुछ भेंट करो। कई लोग बहुत गलत करते हैं। ब्राह्मणों का सम्मान करना चाहिए। जिस ब्राह्मणों के पास विद्या है, वेदों के मंत्र जिस ब्राह्मणों के मुख में से निरंतर प्रकट होते रहते हैं, ऐसे ब्राह्मणों की पूजा करनी चाहिए, ऐसे ब्राह्मणों का सम्मान करना चाहिए। जिस देश में, जिस गांव में, जिस घर में, जिस कुटुंब में ब्राह्मणों का सम्मान रहता है, इस कुटुंब परिवार में सम्मानित इस समाज के अंदर वो रहते हैं। कोई भी देवालय शिवालय हो, कि राम जी मंदिर हो, कृष्ण मंदिर हो, शंकर भगवान का शिवालय हो, उस पुजारियों का मान सम्मान करो। भगवान के समान ये पुजारियों की महिमा है। कई लोग पुजारी का अपमान करते हैं और शंकर भगवान की स्तुति करते हैं। कभी पुजारी का अपमान नहीं, जो है भाई पुजारी है, उसका दोष और दुर्गुण अवगुण देखकर नहीं, बस ये भगवान महादेव की पूजा कर रहे हैं इसलिए उसका मान सम्मान करो, उसको प्रसन्न करो। इसलिए कभी भी कोई देव मंदिर के पुजारी का अपमान न करना चाहिए। गलती से भी कोई विद्वान ब्राह्मणों का, अरे किसी का भी अपमान नहीं करना चाहिए। कहीं लोगों में आदत होती है कदम कदम पर दूसरों का अपमान करने की। नीति सूत्रों में एक सूत्र बहुत सुंदर कहा है, कोई भी व्यक्ति का आप अपमान करो तो उस मानव की हत्या का पाप लगता है। कोई भी व्यक्ति का आप अपमान करो उस मानव की हत्या का पाप लगता है। आपका कोई अपमान करे तो आपको कितना दुख होता है। आने कहता तो धरती माग आपी दे तो हारू, हम था कि नहीं क्या रख
કોક આપણું અપમાન કરે તો કેવું થાય, ધરતી ફાટે અને સમાઈ જાય. કોઈનું અપમાન કરવામાં બહુ મજા આવે, બાકી ક્યારેક અપમાન સહન તો કરો, તમને ખબર પડે. અપમાન સહન કરવું ઝેરના ઘૂંટડા ઉતારવા બરાબર હોય છે. માટે સગા સંબંધી મિત્રોનું તો અપમાન ન કરવું, સુખી થવું તો દુશ્મનનું અપમાન ન કરવું. જીવનમાં સફળતા પ્રાપ્ત કરવી હોય તો દુશ્મનોના પણ અપમાન ન કરો, દુશ્મનોના પણ માન સન્માન કરો. અને કોઈનું તમે માન સન્માન કરો એમાં કોઈ ખર્ચ થાય ભાઈ, એમાં કોઈ ફોર્મ ભરવું પડે, ટેક્સ ભરવો પડે, ઇન્કમ ટેક્સ, સેલ ટેક્સ, રોડ ટેક્સ, કોઈ પ્રકારના ટેક્સ નથી ભરવા પડતા. સામેના માણસનું સન્માન મફત થઈ શકે છે, પણ છતાં આપણે ખબર નથી કરી નથી શકતા. કોઈ પણ માણસનું તમે જ્યારે સન્માન કરો છો ત્યારે એના કરતા તમારું સન્માન વધી જાય છે. કારણ કે સન્માન કરો છો તેનું સન્માન નહીં, તમારું માન વધે સમાજમાં. માટે નાના મોટા દરેકનું માન સન્માન કરો, કોઈનું આપણાથી અપમાન ન થઈ જાય તેની આપણે સૌએ કાળજી રાખવાની છે. આ ભગવાનની કથા કહેતા કહેતા આપણે શીખવાનું આવું બધું છે. અને નીતિ સૂત્રોમાં એક વાત બહુ સુંદર કરી, જે માણસ પોતાની જાતને ડાયો માનતો હોય ને એ દુનિયાનો મોટામાં મોટો મૂર્ખ માણસ છે. કોઈ પણ માણસ, નીતિ સૂત્રોની વાત છે, જે માણસ પોતાની જાતને ડાય માને કે હું બહુ ડાયો છું, મને જ ખબર પડે છે. અરે આપણા કરતા દુનિયામાં બહુ ડાયા માણસો છે, આપણા કરતા દુનિયામાં વિદ્વાન માણસો પડ્યા છે, આપણે તો કિંકર સમાન છીએ. કોઈ પણ માણસના હૃદયમાં એવો ભાવ આવે છે કે હું જ ડાયો, મને જ બધી ખબર પડે, એ નીતિ સૂત્રોના સૂત્ર આધારથી એ માણસ એ મૂર્ખ માણસ છે. માટે સુખपूर्वक मुख में से कोई मंत्र जो निकलने वाला है तो ये है ओम नमः शिवाय. मंत्रम सुख मुखोच्चार्य, सुखपूर्वक ओम नमः शिवाय. बाकी तो कठिन मंत्र हम सब नहीं बोल सकते ने, ये तो नमो भवा शर्वाय रुद्राय पशुना पतिये ये बोलिए क्या पड़े, आपने हेलू पड़े. बाकी 5 अध्यायની જે રુદ્રી પાઠ આવે એ આપણે બોલીએ કે એ આપણું કામ જ નથી. એ તો વિદ્વાન બ્રાહ્મણો જે પાઠશાળામાં ભેળા હોય તેવા બ્રાહ્મણો બોલી શકે છે. એ વંદનીય છે, પૂજનીય છે. भगवान व्यास ने कहा सभी विद्याओं का कोई बीज है तो ये है ओम नमः शिवाय. सुनिए, शिव भक्तों के लिए बहुत सुंदर है. तदबीजं सर्व विद्यानां मंत्रमाद्यं षडक्षरम् अति सूक्ष्म महार्थं च ज्ञेयं तद्बीजं च ज्ञेयं तद्बीजं अति सूक्ष्म महाअर्थ तद्बीजं सर्व विद्यानां, सभी विद्याओं का कोई बीज है तो ये है ओम नमः शिवाय मंत्र. जगत के अंदर अनेक प्रकार की विद्या है और कोई मानव सभी विद्या प्राप्त नहीं कर सकते. आपके जीवन में जो जरूरत है वही विद्या को प्राप्त कर लेना चाहिए. सभी विद्या हम नहीं प्राप्त कर सकते, करोड़ों करोड़ों विद्याएं है, एक नहीं विद्या अनंत विद्याएं है. कोई सुंदर रसोई बनावे ये पण एक विद्या है, कोई सुंदर प्रवचन करे ये पण एक विद्या है, कोई सुंदर संगीत वगाड़े आ पण विद्या है. बंसरी वगाड़वानी विद्या, वायोलिन वगाड़वानी विद्या, हार्मोनियम वगाड़वानी विद्या, गावानी विद्या, भले कला पण छे तो विद्या है. आपके जीवन में जो जरूरत है वो प्रकार की विद्या प्राप्त कर लो. सभी विद्या प्राप्त नहीं कर सकोगे. लेकिन भगवान व्यास ने कहा तदबीजं सर्व विद्यानां, सभी विद्याओं का कोई बीज है तो ओम नमः शिवाय मंत्र है. जो मानव ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते उस मानव को सभी विद्या की प्राप्ति हो जाती है. विद्यार्थे लब्धते विद्या, धनार्थे लब्धते धनम, पुत्रांते लब्धते पुत्र, मोक्षांते लब्धते गतिम. धन निर्धन को देत सदा ही, जो कोई जहां से हो फल पाही,
स्तुति कही विधि करे तुम्हारी, वरहु नाथ बचूक हमारी। शंकर हो संकट के नाशन, विघ्न विनाशन, मंगल कारण। योगी इति मुनि ध्यान लगावे, नारद सारद शिष्य नमावे। नमो नमो जय नमः शिवाय, सूर ब्रह्मादिक पार न पावे। सूर आदि आदि देवताओं पर जिसकी महिमा न गा सके, ऐसा मंत्र ओम नमः शिवाय मंत्र। पुत्र हिनकर इच्छा कोई, निश्चय शिव प्रसाद ते होई। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सन्मुख पाठ सुनावे, तो जन्म जन्म के पाप नचावे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय जो जाप करते हैं ने, दुख की कोई ताकत नहीं कि आपके नजदीक कोई दुख भी आ सके, लेकिन निरंतर ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, आपके रुए रुए से ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय निरंतर गूंजता रहे। अति सूक्ष्म महाअर्थ ओम नमः शिवाय जप करने वाले का कभी अनर्थ नहीं होता। इसलिए आपका शुभ करना चाहते हैं आप, तो अधिक से अधिक ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। जिस भाइयों बहनों वडीलों का इष्ट मंत्र ओम नमः शिवाय है, यह वडील भाइयों बहनों को कभी अवसर मिले तो 5 लाख मंत्र का अनुष्ठान एक बार अवश्य करो। शिवपुराण में कहा है, कोई भी व्यक्ति ओम नमः शिवाय मंत्र, जिसका इष्ट मंत्र, गुरु मंत्र, सदगुरु मंत्र, जिसने अपना मंत्र मान लिया, ग्रहण कर लिया, बस एक ही मंत्र, उस भाइयों बहनों के लिए समय मिले, यही समय आप 5 लाख मंत्र का एक बार अनुष्ठान करना, तो ये मंत्र आपके लिए सिद्धि देने में समर्थ हो जाएगा। ऐसा शिवपुराण में कहा है। 5 लाख। इसमें माक्षर मास हो अथवा भादो मास, 2 मास उत्तम कहा है। कोई भाइयों बहनों को ओम नमः शिवाय मंत्र पंचलंक करना है तो उसके लिए माक्षर मास उत्तम है अथवा भादो मास उत्तम है। श्रावण मास की तो महिमा शिवपुराण में कहीं जगह पर कही नहीं गई है, ये तो लोक वायका है। श्रावण मास की कथा हमने कहीं जगह पर सुनी नहीं। मैंने विद्वानों को बहुत भी प्रश्न किया कि श्रावण मास में भगवान शिव जी की पूजा क्यों हो रही है, इसकी कोई कथा है, कोई पुरावा कहीं जगह पर है, लेकिन कहीं से मुझे नहीं मिलता। मैं भी शोध कर रहा हूँ, मुझे मिल जाएगा तो मैं आप सबको प्रसाद में दूंगा, लेकिन अभी कोई संशोधन नहीं हुआ है। महाशिवरात्रि तो है ही कि भगवान महादेव का लिंग प्रागट किया और बाबा ने जब ब्रह्मा और विष्णु को दर्शन दिया, यही रात्रि, यही शिवरात्रि, यही महाशिवरात्रि। महादेव के भक्तों के लिए माक्षर मास उत्तम है, महादेव के भक्तों के लिए भादो मास उत्तम है। कोई भी भगवान शिव का अनुष्ठान करना है तो भादो मास और माक्षर मास सर्वश्रेष्ठ है। अवसर मिले तो आप पंचलक्ष मंत्र का अवश्य एक अनुष्ठान करें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जिस भाइयों बहनों वडीलों का इष्ट मंत्र ओम नमः शिवाय, उसको पहले बोले वामदेव ऋषि, अनुष्टुप छंद, सदाशिव देवता, धर्म अर्थ काम मोक्ष, लाभार्थे जपे विनियोग। इतना बोलने के बाद ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करो। ये विधान है उसका। सभी देवी देवताओं के मंत्रों के विधान होते हैं, ये ओम नमः शिवाय मंत्र का विधान है। वामदेव ऋषि, अनुष्टुप छंद, सदाशिव देवता, धर्म अर्थ काम मोक्ष, लाभार्थ जपे विनियोग, ये उसका विधान है। आवड़े तो ठीक है, न आवड़े तो कहीं तर गोटाळो करवानी जरूर नहीं। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय भजो। अति सूक्ष्म महार्थ। तद वट बीजम, जैसे छोटे से बीज में पूरा वट है, कोई विरोध कर सकते हैं? छोटा सा बीज, इसमें पूरा वट वृक्ष है। नानकड़ा बीज में आखो वडलो है कि नहीं, तो वडलो में निकले ने। जैसे छोटे से बीज में पूरा वट वृक्ष है, वैसे एक छोटे से मंत्र में सभी मंत्र अंदर है। जगत के सभी मंत्र इस मंत्र के अंदर ही है। सभी मंत्रों का पिता ओम नमः शिवाय मंत्र। महादेव से बड़ा कोई देव नहीं, ओम नमः शिवाय मंत्र से कोई बड़ा मंत्र जगत में नहीं है। सभी देवी देवताओं का मंत्र इस ओम नमः शिवाय मंत्र में।
एक महापुरुष ने भी कहा था कि कोई भी ग्रह की पीड़ा हो, किसी को मंगल की पीड़ा, किसी को शनि की पीड़ा, कोई ग्रह की पीड़ा है, तो इस ग्रह मंत्र का जाप करना चाहिए। लेकिन इस ग्रह के मंत्र को आप न पढ़ सके, न बोल सके, तो इस ग्रह के मंत्र के बदले में आप ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करो तो ग्रह पीड़ा भी शांत हो जाएगी। और अंत में तो सभी ग्रहों का मंत्र ओम नमः शिवाय मंत्र में है। एक को पकड़ो, सभी मंत्रों का फल इस ओम नमः शिवाय मंत्र देने में समर्थ है। इसलिए निरंतर जपते रहो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कथा में कहा था कि ओम नमः शिवाय मंत्र जिसके मुख में से निकलता है ना, उसका मुख का दर्शन करने मात्र से गौमुख की यात्रा का फल मिलता है। गौमुख कोई नजदीक नहीं है, जिसने यात्रा की होगी उसको मालूम होगा कि गंगोत्री से चलते चलते 18 किलोमीटर जाना पड़ता है, तब गौमुख आता है। गौमुख की यात्रा का फल कोई मानव के मुख में से ओम नमः शिवाय मंत्र निकले, उसके मुख का दर्शन करने मात्र से मिलता है। तो कोई मानव के मुख में से ओम नमः शिवाय मंत्र निकले, उसके मुख का दर्शन करने मात्र से गौमुख की यात्रा का फल मिलता है। तो जिसके हृदय में से ओम नमः शिवाय मंत्र निकलता है, उसकी महिमा दुनिया का कोई देव भी नहीं गा सकता। ये मंत्र की महिमा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः। 2 मिनट के लिए पहाड़ी करें। भोलेनाथ
हाँ